Very good morning, the students. Let us begin with first lecture of the day. I hope we should begin with the prayer. प्रेयर चालू करते हैं. सब खड़े हो जाइए. So we'll begin the day with the prayer. कौन से दो? याकुंदेन और दूसरा कौन सा? गुरु ब्रह्मा. Begin with the prayer. जोर से. गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः. Occupy the seats. Before starting, let us mention lecture details. Write down in the notebook. Today's day 13/10/21. Write down today's date. We'll mention lecture details. 13/10/21. Serial lecture 1 of the day for subject physics by Shendye madam, MVS. In previous lecture, we studied the formation of transverse type stationary waves along the straight string between or fixed between two rigid supports. Isn't it? We studied its all possible permitted modes of vibration. We also derived expression for frequency with which the string vibrates per mode in different cases, and we proved all harmonics. What is harmonics? It includes the fundamental frequency and all its integral multiples, even as well as odd. So in different modes of vibrations, the string has a frequency equal to fundamental frequency 1 upon 2L square root T by M along with all its integral multiples. The fundamental frequency itself is the lowest possible frequency with which string vibrates and is called first harmonic. Each next serial multiple integral is called higher harmonics. That is second harmonic, twice the fundamental, third harmonic, thrice the fundamental, fourth harmonic, whose frequency is 4 times n, 4 times the fundamental frequency. So all these harmonics, even odd, are present in different modes of vibration of straight string. Generally, in practice, the word overtone is used. Scientific word overtone है, वो हम लोग use करते हैं. The frequencies which are actually present in vibration immediate higher the fundamental frequency are called overtone. So what here the fundamental frequency n, which is first harmonic 1 upon 2L square root T by M, is first harmonic. Immediate higher frequency which is present in the vibration in second mode, formation of how many loops? 2 loops. That is 2 antinodes and 3 nodes. Isn't it? That will be 2n. And it is called first overtone. So first overtone belongs to second harmonic in case of straight string. Then next higher which is present is 3 times n. It is labeled as second overtone. So frequencies
Harmonics which are actually present in the vibration of given system are called overtones. So in case of straight string, first overtone belongs to frequency equal to 2n. So second harmonic is equal to first overtone. Third harmonic we will label it as second overtone. So in exam, generally they do not ask or they do not use word harmonic. Harmonic के word use नहीं करते. The values will be given. ऐसा बोलेंगे the length of string under tension has mass per unit weight per length dash dash dash. ये सब values आपको दी जाएगी. Find the frequency of its second overtone. They will not ask you to find frequency of third harmonic. एग्जाम में ओवरटोन वर्ड यूज किया जाता है. So remember well, whenever overtone it relates with harmonic which are actually present. So in case of straight string, second harmonic immediately higher the fundamental will be first overtone. Next immediate higher will be second overtone and so on. एग्जाम में हार्मोनिक वर्ड यूज नहीं किए करेंगे वो लोग, ओवरटोन यूज करते हैं. एंड ओवरटोन इन दिस केस रिमेंबर एक चार्ट ही बनाना पड़ेगा हम लोगों को. इन केस ऑफ स्ट्रेट स्ट्रिंग फ्रीक्वेंसीज ओवरटोन्स, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हार्मोनिक फर्स्ट हार्मोनिक, ओवरटोन के ऊपर क्या रहेगा डैश. ऐसा चार्ट बनाना घर में जाके. फ्रीक्वेंसी हार्मोनिक और थर्ड कॉलम कौन सा रहेगा ओवरटोन. फ्रीक्वेंसी फंडामेंटल इज कॉल्ड फर्स्ट हार्मोनिक, उसका लेबलिंग ओवरटोन में नहीं आएगा. फर्स्ट हार्मोनिक फंडामेंटल है, उसको ओवरटोन नहीं बोलेंगे. फ्रीक्वेंसी 2n will be second harmonic and then it will be labeled as first overtone. पूरा का पूरा आप लोगों को चार्ट बनाना है, बुक में दिया हुआ नहीं है. For our sake, you prepare such charts. So through once you glance through it, you will get idea during exam. Exam के टाइम पूरा पढ़ के रखेंगे ना तो टाइम बहुत वेस्ट होता है. तो थोड़ा अपने हिसाब से खुद के हिसाब से नोट्स निकालो, शॉर्ट नोट्स निकालो. Go through that short notes, immediately you will click and you will get that answer. So for that I am asking you, and self study is much important. हम लोग तो है ही, लेकिन self study conceptually clearance on your own is more essential. Is that clear? अभी ये natural frequency हो जाती है. This is one way to set the system in vibration. What we are doing over here? क्या कर रहे हैं, स्ट्रिंग है उसको प्लग कर रहे हैं, डिस्टर्बिंग फ्रॉम द मीन पोजीशन एंड सेटिंग इटसेल्फ फ्री टू वाइब्रेट. बराबर है. सच आर कॉल्ड फ्री वाइब्रेशंस. फॉर इट्स मोशन एक्सटर्नल फोर्स इज नॉट रिक्वायर्ड. सच आर कॉल्ड नेचुरल वाइब्रेशंस एंड द फ्रीक्वेंसी विथ विच इट वाइब्रेट्स इज नेचुरल फ्रीक्वेंसी. उसको फ्री वाइब्रेशंस बोलते हैं. The other way to set the body, set the system in vibration, can you think? दूसरा कौन सा वे है क्या रे, जिसके हिसाब से हम लोग वही स्ट्रिंग इन वाइब्रेशन सेट कर सकते हैं विदाउट टचिंग इट. उसको टच नहीं करना है. बोलो आप लोगों को कुछ सोचता है क्या? So that the string will set in vibrations. I will give one example. Suppose ये आप लोगों को डेक्कन का जेड ब्रिज मालूम है. इट इज प्रोहिबिटेड फॉर फोर व्हीलर्स. फोर व्हीलर्स उसके ऊपर जा नहीं सकती है. अगर मैंने वो जेड ब्रिज प्लग किया छोड़ दिया, इट विल वाइब्रेट ऑन इट्स ओन एंड इट विल हैव इट्स ओन नेचुरल फ्रीक्वेंसी इन इट्स सिंपलेस्ट मोड. सिंपलेस्ट मोड का हम लोग जिक्र करते हैं. तो जेड ब्रिज मैंने डिस्टर्ब किया छोड़ दिया, वो डायमेंशन के लिए उसकी खुद नेचुरल फ्रीक्वेंसी रहेगी. अभी मेरे को क्या करना है, जेड ब्रिज मोशन में डालना है लेकिन विदाउट टचिंग इट. उसको डिस्टर्ब वगैरह नहीं करना है खुद का. क्या अलग तरीका है सोच सकते हो आप लोग. इफ आई हैव अ सोल्जर ट्रूप
and if I ask them to march over the bridge, marching हाँ, लेकिन periodic चाहिए, आगे पीछे नहीं, सब लोग मार्च कर रहे हैं तो क्या होता है बोलो, all they are marching together, so they will import external periodic force on the bridge. Due to their marching, the force will be generated, and that force lets the bridge in vibration, sets the bridge in vibration. ये भी तरीका हो सकता है ना. हाँ, एक टेबल टॉप है, मैंने टेबल टॉप इनिशियली इट इज एट रेस्ट. हाँ, ये टेबल टॉप है, उसका कुछ कर रहे क्या नहीं है. If I take tuning fork, if I vibrate it, and if I keep vibrating tuning fork with its stem over this tabletop, ये वाइब्रेशन चालू है, तो क्या हो जाएगा बताओ. These vibrations of the fork will be transmitted over this tabletop, and tabletop रिजिड है ना, ज्यादा मासिव है, तो वाइब्रेशंस लोगों को दिखेगी नहीं, लेकिन वो वाइब्रेशंस में क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा. सो सोल्जर ग्रुप व्हेन मार्चेस ओवर द ब्रिज, that external periodic force developed by their marching sets the bridge in vibration. ये अलग तरीका है. This is second mode with which we can set the system in vibration. लेकिन उसमें क्या होता है, when external periodic force is applied and system is set in vibration, the frequency of vibration is not its natural frequency है ना. सपोज मैंने स्ट्रिंग लिया, लेंथ L है, मास पर यूनिट लेंथ m है, तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी, 1/2L square root T by m. For given length, for given tension, for given mass of per unit length, the given length of string will vibrate with frequency calculated using this formula, isn't it? उसकी कुछ हर एक बॉडी की खुद की नेचुरल फ्रीक्वेंसी रहती है, डिपेंडिंग ऑन इट्स डायमेंशंस एंड डिपेंडिंग ऑन इट्स ओन नेचर. समझा. अभी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से ही एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स वाइब्रेशंस क्रिएट करेगा, ऐसा नहीं है. अभी ये टेबल टॉप है. इफ आई कीप ट्यूनिंग फोर्क ऑफ फ्रीक्वेंसी 256 set in vibration over the tabletop, the frequency of vibration of tabletop will be same as that of the frequency of periodic force applied. अभी उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी, मैंने ट्यूनिंग फोर्क नहीं यूज किया है, टेबल टॉप खींचा और छोड़ दिया, सो इट विल वाइब्रेट विद इट्स नेचुरल फ्रीक्वेंसी. सपोज उसकी वैल्यू n है, खुद की नेचुरल फ्रीक्वेंसी n है, इन सिंपलेस्ट मोड विथ लोएस्ट फ्रीक्वेंसी. मैं क्या कर रही हूँ, मैं फ्रीक्वेंसी ऑफ फोर्क से उसको वाइब्रेट कर रही हूँ. तो अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ फोर्क n है, तो when is vibrated under the action of vibrating tuning fork, the frequency of vibration of tabletop will be n. वो ये n से वाइब्रेट नहीं होगा, वो it will vibrate with frequency 256 instead its original natural frequency. जब भी एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्क अप्लाई करके हम लोग वाइब्रेशंस चालू करते हैं, तभी उसकी वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी remains equal to frequency of applied external periodic force. अभी सपोज उसकी n की वैल्यू 200 है. Let us calculate using this formula. ये फॉर्मूला से मेरे को वैल्यू कितनी आई, for the given dimension suppose 200, और we are forcing it to vibrate with frequency how much, 256. बराबर ना. मैं 256 को फ्रीक्वेंसी से उसको वाइब्रेट कर रही हूँ, लेकिन उसकी खुद की फ्रीक्वेंसी क्या है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी 200 हर्ट्ज. इफ दिस टू फ्रीक्वेंसी डू नॉट मैच, then amplitude of vibration is very small. उसके amplitude value बहुत कम रहती है. So what we do to get maximum amplitude for vibrations, we adjust the dimensions of this tabletop. For example, I will go for straight string. You will understand the concept more better.
स्ट्रेट स्ट्रिंग के बारे में मैं डील करती हूँ। एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक है, बॉक्स, hollow inside, suppose अंदर एयर है, हाँ? A string passes over the length of the box, one end tied over two pulleys or bridges, and this is pulley supported by hanger so that it will have stretch, उसको stretching मिल जाएगा। These bridges are movable, you can move the bridges, थोड़ा सा दूर ले सकते हैं, दोनों थोड़े पास भी ला सकते हो। तो यह क्या है? For given length L1, for given tension, let the natural frequency of this string be N1। जब भी उसकी लेंथ L1 है तो उसकी फ्रीक्वेंसी वैल्यू कितनी आएगी? 1/2 L1 स्क्वायर रूट T by M। अगर मैंने लेंथ चेंज की, if I make it greater, so L1 will become now L2, denominator increases, so frequency with which string vibrates will decrease। so natural frequency, अगर जब हम लोग डायमेंशंस चेंज करते हैं ना, तो उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी की वैल्यू भी क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। समझा? तो ये टेबल टॉप है, टेबल टॉप की इस डायमेंशंस के अनुसार उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हमने कैलकुलेट की? n की। अगर मैं ये टेबल टॉप की डायमेंशंस चेंज करूं तो उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी भी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। फॉर्मूला वही है, मोड ऑफ वाइब्रेशन वही है, लोएस्ट पॉसिबल फ्रीक्वेंसी वाइब्रेट कर रहे हैं ना हम लोग, तो उसमें कुछ बदलाव नहीं किया है, लेकिन डायमेंशंस चेंज किए, नेचर चेंज किया, तो ऑटोमेटिक नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? बदल जाएगी। तो हम लोग क्या करते हैं? सपोज दैट ट्यूनिंग फोर्क आई विल प्लेस वाइब्रेटिंग ऑन द टॉप ऑफ दिस बॉक्स। ये टेबल टॉप लिया, उसका मैंने रिप्लेसमेंट किया विद दिस सोनोमीटर, ये उसको सोनोमीटर बोलते हैं। इट इज अ मीटर apparatus, डिवाइस है जो मेजर करता है फ्रीक्वेंसी, दैट इज मीटर ओनली। तो क्या होता है? ये एयर कॉलम है ना, ये वाइब्रेट होना चालू होता है, वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोर्क ऊपर रखा तो, and the vibrations of air column are then passed over the string and then that string starts vibrating। अगर वाइब्रेट करना है तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? प्लग करना पड़ेगा ना। तो प्लगिंग नहीं करना है, हम लोगों को हाथ नहीं लगाना है, फिर भी उसको वाइब्रेशन में सेट करना है, तो हम ये एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स यूज कर सकते हैं। सो फॉर गिवन लेंथ, if n is frequency of 4, the string in its basic mode, suppose only one loop is formed over its length, will vibrate with frequency n, और उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या है? n। लेकिन this n can be adjusted if you change the value of this l, n can be set and you adjust its length so that natural frequency and frequency of external periodic force will match। वो पहले से n फ्रीक्वेंसी से ही वाइब्रेट हो रहा है ना, लेकिन ये n उसके नेचुरल फ्रीक्वेंसी से क्या है? अलग है। तो हम लोग क्या करेंगे? ये l एडजस्ट कर देते हैं सो दैट नेचुरल फ्रीक्वेंसी फॉर दैट पर्टिकुलर लेंथ will become equal to frequency of tuning fork। ये 200 थी ना, जब भी लेंथ कितनी थी? L1, और वाइब्रेट हो रहा है इसमें किससे? 256 से। थोड़ा सा लेंथ इंक्रीज करो, तो फॉर दैट पर्टिकुलर लेंथ n will be different, adjust the length such that for given length n will be same as frequency of fork। समझता है क्या कुछ? और इसलिए क्या होता है? when they match, the amplitude with which the system vibrates under the action of external periodic force depends on the difference between the frequencies of these two, natural frequency and frequency of external periodic force। अगर वो डिफरेंस कम करते जाते हम लोग, तो एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन विल गो ऑन इंक्रीजिंग, और जब भी वो मैच होते हैं दोनों, दैट टाइम वी से रेजोनेंस ऑकर्स, उसको रेजोनेंस बोलते हैं। आई एम डीलिंग विथ टुडे विथ पॉइंट
6.6 ऑन पेज नंबर 140 पेज निकालो, आर्टिकल आई 6.6 ये मैंने आज चालू किया है, समझा ना? समझते हैं आप लोग? तो अभी क्या होगा बोलो? अभी देखो लेंथ एडजस्ट की, जैसे कि उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी फॉर दैट पर्टिकुलर लेंथ, अगर लेंथ बदलते हो तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी भी चेंज हो जाती है, समझा? तो ये दोनों मैच करते हैं, मैच किया तो ये स्ट्रिंग क्या होगा? फ्रीक्वेंसी 256 ही रहेगी, लेकिन फॉर दैट लेंथ वी आर एडजस्टिंग इट्स नेचुरल फ्रीक्वेंसी विथ फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स। सो एम्पलीट्यूड विल बी वाइब्रेशन मैक्सिमम, तो इधर सेंटर में एंटी नोड तैयार होता है, बराबर, विथ मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। इफ यू कीप अ पेपर राइडर, अ पीस ऑफ पेपर, टाइनी पीस, वेटलेस ले रहा है, ये स्ट्रिंग के ऊपर हम लोग रखते हैं, यू गो ऑन एडजस्टिंग द लेंथ, ब्रिजेस करो, ट्यूनिंग फॉर वाइब्रेटिंग इधर ही रखो, at one particular length automatically this rider will fall off. That time for the given length is frequency with which vibrate, it becomes equal to frequency of external periodic force. समझा मैं क्या बोली? ये लेंथ है, इनिशियली मैंने L1 रखी है, 4 लिया है और फ्रीक्वेंसी n, इधर पेपर राइडर रखा ही है, पहले से रख देती हूं मैं, जब तक ये n और लेंथ की नेचुरल फ्रीक्वेंसी n मैच नहीं होती तब तक that paper rider will not automatically fall down at particular length. For that length natural frequency of free vibrations become equal to frequency of periodic force applied and paper rider will fall off, तभी पेपर राइडर गिर जाता है। अभी क्या होता है, अब मैंने जेड ब्रिज का जिक्र किया आप लोगों से, जेड ब्रिज है मालूम है? सिंपलेस्ट एग्जांपल रेडियो रिसीवर के बारे में बात करते हैं। अपना रेडियो रहता है ना, उसके बारे में बात करती हूँ, अलग अलग कंपोनेंट्स है अंदर, व्हेन यू मेक इट ऑन डिफरेंट कंपोनेंट्स स्टार्ट वाइब्रेटिंग and we get the resultant vibrating frequency for the entire set. जब भी चालू करता है तभी कंपोनेंट्स है ना, उसमें करंट पास होता है तो वाइब्रेट होंगे ही, एंड द रिजल्टेंट वाइब्रेशन दे विल गिव फॉर द एंटायर रेडियो रिसीवर सेट। चालू किया तो रेडियो रिसीवर सेट की कुछ तो फ्रीक्वेंसी रहती ही है। अभी हम लोग क्या करते हैं, ट्यून करते हैं, ट्यूनर रहता है ना, वो ट्यून क्या करते हैं, वी आर ट्राइंग, इफ अगर मेरे को पुणे विविध भारती सुननी है तो पुणे विविध भारती, रेडियो मिर्ची, पुणे आकाशवाणी, सब में वेव्स ये रूम में भी है कि नहीं बताओ? ऑल दीज वेव्स आर प्रेजेंट। आई वांट टू कैच वन पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी ऑन माय रेडियो रिसीवर सेट. So what I do, I adjust the frequency of radio receiver by tuning it so that natural frequency with which it is vibrating when is made on matches with frequency of the station you want to hear. बराबर है ना? तो आकाशवाणी पुणे मेरे को सुननी है तो पुणे आकाशवाणी की जी फ्रीक्वेंसी है, वही फ्रीक्वेंसी से वो रेडियो रिसीवर वाइब्रेट होना चाहिए, then resonance occur and you will hear a loud sound. नहीं तो साउंड आता है क्या पुणे आकाशवाणी के ऊपर? कहीं भी आपने ट्यूनर रखा तो सुनाई देगा क्या वो पर्टिकुलर स्टेशन? आप लोग रिमोट से क्या करते हैं, चैनल चेंज करते हैं ना टीवी सेट के, वो टीवी सेट में क्या रहता है, उसका खुद का एक सर्किट है ना, जब भी टीवी ऑन करते हैं ये खुद की सर्किट की कुछ तो फ्रीक्वेंसी है, एंड व्हेन यू चेंज by remote you are trying to match its natural frequency with the frequency of the channel you have to receive. अभी मराठी देखना है, नहीं तो कलर मराठी देखना है, एक ही ऐसा बिना बटन दबाए आप लोगों को वो दिखाई देगा क्या? नहीं देखा ना? तो हम लोग क्या कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ TV receiver you are tuning, you are adjusting with the frequency of the channel you want to perceive, and that is the case of resonance.
उसके और एक तो वो फोर व्हीलर को प्रोहिबिट क्यों करते हैं हम लोग? अगर बहुत सारे फोर व्हीलर्स ऊपर से गए, सो रिजल्टेंट फ्रीक्वेंसी of the force produced on the bridge if matches with its own natural frequency, उसकी तो लेंथ वगैरह चेंज नहीं कर सकते ना, तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी वो फिक्स है। और अगर पासिंग ऑफ द व्हीकल्स प्रोड्यूसेस एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स if equal to frequency natural frequency of the bridge, then bridge will vibrate with maximum amplitude and there is chance to collapse it, तो कोलैप्स हो जाएगा ना। पीरियोडिक फोर्स से वाइब्रेशन चालू होते ही है, लेकिन फ्रीक्वेंसी इक्वल टू पीरियोडिक फोर्स फ्रीक्वेंसी, बट लेकिन जब भी उसकी फ्रीक्वेंसी उसके फ्री वाइब्रेशन के नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मिलती है तो क्या हो जाता है? रेजोनेंस होता है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड से वाइब्रेशंस मिलेगी और जेड ब्रिज पूरा कोलैप्स हो जाएगा। सो इट इज डिजाइन इन सच अ वे so that even external periodic force is implemented over it, frequency of external force will never match with its natural frequency of vibration। टू व्हीलर्स जाता है ना, तभी टू व्हीलर की जो में से जो फ्रीक्वेंसी मिलती है वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी से बहुत अलग है, तो देर इज नो चांस टू सेट द जेड ब्रिज इन वाइब्रेशंस ऑफ मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। टू व्हीलर जाता है तो वो ब्रिज हिलता ही है, हिलेगा ही, लेकिन वो जो फ्रीक्वेंसी से हिल रहा है एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स के फ्रीक्वेंसी से, उसकी फ्रीक्वेंसी उसके नेचुरल फ्रीक्वेंसी से बहुत दूर है। सो व्हेन इट विल वाइब्रेट विद पैसेज ऑफ टू व्हीलर्स, नो रेजोनेंस विल ऑकर एंड देयर इज नो चांस ऑफ एक्सीडेंट। सभी सोल्जर मार्चिंग करते हैं ना, रोड पे चलते जाते हैं और while crossing the bridge they are asked to stop the marching। सीधे चलो, ब्रिज के ऊपर से मार्चिंग के साथ नहीं चलना है, क्योंकि अगर नेचुरल फ्रीक्वेंसी वो ब्रिज की उनके मार्चिंग फ्रीक्वेंसी से मैच होती तो वो ब्रिज क्या हो जाएगा? कोलैप्स हो जाएगा ड्यू टू फिनोमेनन ऑफ रेजोनेंस। इजंट इट? मैंने जितने हो सके मैं बोल रही हूँ। सो वी आर कंटिन्यूइंग विथ 6.6। समझे आप लोगों को क्या है? फ्री वाइब्रेशन, फोर्स वाइब्रेशन एंड व्हेन नेचुरल फ्रीक्वेंसी मैचेस विथ फ्रीक्वेंसी ऑफ फोर्स वाइब्रेशन। क्योंकि जब भी कौन सी भी बॉडी आप एक्सटर्नल फोर्स से वाइब्रेट करेंगे ना, इट विल वाइब्रेट विथ फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सटर्नल फोर्स ओनली फॉर दिस गिवन लेंथ। When plug and relieve, suppose natural frequency is n, but when tuning fork लेके उसको वाइब्रेट करेंगे ना तो वो फ्रीक्वेंसी n कभी भी नहीं रहेगी। वो कितनी रहेगी? फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स। इज दैट क्लियर? समझता है क्या आप लोगों को? कुछ समझाना? तो जनरली क्वेश्चंस आर आस्क्ड, डिस्टिंग्विश बिटवीन फ्री वाइब्रेशंस, फोर्स वाइब्रेशन, डिस्टिंग्विश बिटवीन force vibrations, resonance, free vibrations, resonance, ऐसे distinguishing points ज्यादा आते हैं। So resonance से भी तैयार होता है only and only when the body is set under the action of external periodic force। जब तक external periodic force नहीं है तब तक resonance कभी भी occur नहीं होगा, क्योंकि external periodic force की फ्रीक्वेंसी और उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए? मैच होनी चाहिए, तभी आप लोगों को रेजोनेंस मिलता है। दिस रेजोनेंस यू विल स्टडी इन इलेक्ट्रिसिटी ऑल्सो। आपका हो गया क्या वो चैप्टर? एलसीआर सर्किट्स, एसी सर्किट्स, उसमें भी रेजोनेंस फिनोमेना है ना। इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट, इम्पीडेंस जब भी आता है तभी रेजोनेंस हो जाता है ना। फिर एलसी ऑसिलेटर वगैरह आपने कुछ पढ़ा रहेगा, पता नहीं, मैं सेकंड पेपर में ज्यादा घुसती नहीं हूँ। It is not my Kulkarni madam conducts it, so I will leave. But in that the same concept, वही concept है, कुछ अलग नहीं है। समझा? So with the phenomenon of reference और resonance क्या हो जाएगा? देखो अभी यही phenomenon और कहाँ हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं? These basic concepts are generally used for verification of laws।
अभी क्या देखो, अगर स्ट्रेट स्ट्रिंग लिया इन इट्स फंडामेंटल मोड विथ फॉर्मेशन ऑफ ओनली वन लूप, it vibrates with frequency 1/2 L square root T by m, बराबर है। अगर मेरे को वो फ्रीक्वेंसी, ये लेंथ L है, when tension is T and mass per unit length is m, ये L m T के लिए it is vibrating with frequency m. If any one of these quantities I change, सूर्य की लेंथ L थी, अभी मैंने उसकी लेंथ L1 बनाई, by keeping m and t fixed, by keeping plugging fixed, सेंटर पे ही प्लग करूंगी, इधर भी सेंटर पे ही प्लग करके रिलीज करूंगी, उसमें कुछ दूसरा नहीं लूंगी मैं। Here also natural vibrations, here also natural vibrations, लेकिन L इंक्रीज की तो ये फ्रीक्वेंसी और ये फ्रीक्वेंसी सेम आएगी क्या? आप लोग समझ सकते हो ना? तो ये फ्रीक्वेंसी अभी कितनी हो जाएगी? N1 हो जाएगी। So n can be set as per desired value by adjusting values of t, L and m. If L is increased denominator, so frequency of vibration will what? Decrease. इधर suppose ये particular L, T, M के लिए frequency 500 Hz मिलती है, T, M constant है, L1 increase किया मैंने, तो वो 500 से क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी ना। So natural frequency depends on the dimension, and using this formula you get relation between NL when Tm constant, relation between NT when Lm constant, and relation between frequency of vibration and mass per unit length of the string. Mass per unit length यानी कि क्या होता है? मास पर यूनिट लेंथ, मास इज व्हाट? वॉल्यूम अपॉन, अरे बोलता रहो बटा बटा, सांगा ना, वॉल्यूम अपॉन का ये डेंसिटी अपॉन दिस एल। अभी वॉल्यूम रेडियस के हिसाब से बोल सकते हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ, पाई स्क्वायर एल आएगा ना, और डेंसिटी रो है। तो दिस मास कैन आल्सो बी एक्सप्रेस, मास पर यूनिट लेंथ कैन रीरिटन इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी as well as radius of the string. Volume density related है ना mass से, so mass per unit length can be rewritten in terms of density as well as radius of the string. So each this relation is called law of vibrating string. First law, second law and third law. Third law can be stated in other form also. थर्ड लॉ है वो मास पर यूनिट लेंथ का है, लेकिन इट कैन बी रीरिटन इन टर्म्स ऑफ इट्स रेडियस एंड डेंसिटी ऑफ द मटेरियल। टू प्रूव दिस लॉज, ये लॉज जब भी हम लोग प्रूव करते हैं ना, तभी हम लोगों को ये कंसेप्ट्स यूज करने पड़ते हैं। इज दैट क्लियर? सो इट्स इलस्ट्रेशन वी कैन डिजाइन डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स for our use, which principle or which working whose working can be explained on the principle of these concepts. So next time what we will do, using these concepts and theory of vibrations of stress string, we will proceed further to state the laws of vibrating string, and we study the verification of all these laws with the meter which is called sonometer. मैंने जो बीच में बोला ना रेक्टेंगुलर बॉक्स, उसको सोनोमीटर बोलते हैं, and using that sonometer we can verify the relation between NL, NT and NM. So that we will consider next time. अभी ये हम लोगों को खाली ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव चल रहा है हम लोगों का। स्टेशनरी वेव लॉन्जिट्यूडिनल टाइप में भी डेवलप होता है ना, पाइप मैंने बोला था, पाइप में क्या है, ये एयर कॉलम क्लोज एट वन एंड और द पाइप में भी ओपन एट बोथ द एंड्स, तो उसमें लॉन्जिट्यूडिनल वेव्स तैयार होंगी, इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड इन सेम रीजन, लॉन्जिट्यूडिनल टाइप स्टेशनरी वेव्स तैयार होंगे। हाँ, उसके भी लॉज है। ये खाली हम लोग ने अभी ट्रांसवर्स टाइप स्टेशनरी वेव्स की एप्लीकेशन स्टडी कर रहे हैं। ये पूरा होने के बाद आई विल गो फॉर फॉर्मेशन ऑफ लॉन्जिट्यूडिनल स्टेशनरी वेव्स एंड वी विल स्टडी इट्स इलस्ट्रेशन।
देखो जो पॉइंट रिमेनिंग है ना, पेज नंबर 142, उसमें देखो 6.7.2 दिखाई दे रहा है, 6.7.2, 6.7.3 on the next page. And based on that theory, we have to perform experiments. जब भी आप लोग प्रैक्टिकल्स के लिए आओगे ना, तभी इसके ऊपर पूरे एक्सपेरिमेंट्स हम लोगों को करने ही है. सो लॉन्जिट्यूडनल स्टेशनरी वेव्स का एप्लीकेशन है रेजोनेंस ट्यूब एक्सपेरिमेंट, विच इज गिवन इन द बुक ऑन पेज 145. 145 देखो, दिख रहा है क्या? उसमें रेजोनेंस ट्यूब दिखाई दे रही है, 4 दिखाई, देखो रेड का ऑरेंज कलर में है ना, हाँ वही है. वो पार्ट बाद में चालू करेंगे, पहले हम लोग ट्रांसफर स्टेशनरी वेव्स थियरी एप्लीकेशन कंप्लीट कर देते हैं. सो नेक्स्ट टाइम वी विल डिस्कस अबाउट laws of vibrating string and its illustration.